Hi everyone, so we are starting with the most important questions on probability. The first one here is a coin is tossed twice and the four possible outcomes are assumed to be equally likely. Let S be the sample space when a coin is tossed twice. So S here will be, so the coin is tossed twice. In the first case we can get head and tail. In the second case we can get head and head, then tail and head and tail, tail. These are the four possible outcomes. So I'll just make it. So HH, HT, TH and TT. If E is the event both head and tail have occurred and F is the event at most one tail is observed, then find these values. So I'll write E is equal to both tail and head have occurred. That means HT and TH. These are the two possibilities. Then I can take F is equal to, F means at most one tail. At most one tail means zero tail or one tail. So I'll write head tail, tail head and head head. At most means zero tail or one tail. So I can take head head also since there is no tail here. At least one tail, it would have been 1, 2 and so on. At least means minimum and at most means maximum. Now we have to find out the value of P of E, P of F. Whenever we find out the conditional probability, we need A intersection B and so on. So I'll just note it down. So first I'll see E intersection F, that is HT and TH. Now if I find out the value of P of E, so this will be 2, these are the two cases and total is 4, that means 1 by 2. P of F is equal to, these are the three cases and the total cases are 4. Now P of E intersection F is equal to C, HTTH, HTTH, that means 2 by 4, 1 by 2. What will be the value of this? P of E intersection F, please learn the formulas. P of F. So this will be 1 by 2 divided by P of F is 3 by 4. So here the answer is 2 by 3. Now tell me what is P of F by E. So this will be P of E intersection F divided by P of E. So this is 1 by 2 and P of E is also 1 by 2. So 1 is the answer. And you can also buy my final 50 ebook. इसमें सारे predicted questions हैं that are expected in your board exams. सारे आपको hand written solutions मिलेंगे, exactly how to write like toppers. अगर आपको purchase करनी है, the link is in the description box. So question number 2 है जो यहाँ पर 2 है. 2 balls are drawn from a container containing 3 white, 5 red and 2 black, one by one without replacement. What is the probability that at least one ball is red? अब इसमें हमें 2 बॉल जो निकालनी है एक एक करके एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है. विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन बॉल इज रेड. तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ एटलीस्ट वन बॉल इज रेड इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ नन इज रेड. ठीक है, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे पी ऑफ नन इज रेड. अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे पास हमें रेड कंसिडर नहीं करनी है, तो यहाँ पर 3 वाइट एंड 2 ब्लैक हम बस इसमें से लेंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. जो हमारी फर्स्ट बॉल निकलेगी वो 3, वो इसमें से ही होगी. तो कितना हो जाएगा, मतलब 5 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, 3 + 5 + 2 दैट इज़ 10. तो ये तो फर्स्ट बॉल का है.
सेकंड बॉल जो निकालेंगे हम, क्योंकि इसमें बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अब हम ये जो बॉल हमने ले ली है, सपोज़ एक बॉल निकल गई है, मान लो कि एक वाइट निकल गई है, ठीक है। अब हमें रिप्लेस नहीं करना है, तो अब हमारे पास कितना बचा, यानी अगर एक बॉल निकल गई तो यहाँ 2 वाइट बचा ना, तो यहाँ लिख दोगे आप 4, 2 + 2 4 होता है, डिवाइडेड बाय 9। टोटल बॉल्स कितनी है, 9 बच गई है, एक हमने यूज़ कर लिया। तो ये जो दोनों है, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई तो करेंगे। P ऑफ नन इज रेड इज इक्वल टू 5/10 इंटू 4/9। तो ये यहाँ से आ जाएगा 20/90 यानी 2/9। अब बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, P ऑफ एटलीस्ट 1 इज रेड, ठीक है, 1 माइनस 2/9, सो दिस विल बी 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। बैग A कंटेन्स 4 white balls and 3 black balls, while bag B contains 3 white balls and 5 black balls. 2 balls are drawn from bag A and placed in bag B. Then what is the probability of drawing a white ball from bag B? अब इसको ध्यान से देखो, जैसे ये बैग A है, इसमें आपके पास 4 white and 3 black balls हैं, ठीक है। एंड जो हमारा बैग B है, उसके पास 3 white and 5 black बॉल्स। अब हम क्या करेंगे, 2 बॉल्स हम यहाँ से लेंगे A से और इसको B में प्लेस कर देंगे, ठीक है। जब आपने 2 बॉल्स यहाँ रख दी B में, उसके बाद आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग B। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, बैग B से। अब इसमें आपको पहले तो फर्स्ट यहाँ पर A जो है उसमें कॉन्सेंट्रेट करो, हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। देखो केस 1 हम मान लेते हैं कि जो दोनों बॉल्स ट्रांसफ़र हुई है A से B में, मान लो कि ये दोनों वाइट बॉल्स थी, 2 वाइट बॉल्स, ठीक है। देखो ऐसा हो सकता है, या तो दोनों वाइट होंगी या दोनों ब्लैक होंगी या एक वाइट और एक ब्लैक होंगी, है ना। ये 3 आपके केसेस बनेंगे यहाँ पर, इसको नोट कर लो, केस 1 2 3। तो केस 1 पहले हम 2 वाइट बॉल्स का निकाल रहे हैं यहाँ पर। सो ये हो जाएगा, देखो कितनी वाइट बॉल्स है, टोटल 4 है। 4C कितनी हमें निकालनी है, 2 निकालनी है ना, तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाई टोटल बॉल्स कितनी है 7, 4 + 3 7, C2। इतना समझ में आ गया कैसे हुआ, ठीक है। सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका, हमने 2 ब्लैक बॉल्स निकाली है, यानी इन तीनों में से चूज़ करिए, दैट इज़ 3C2 निकालनी है ना, 2 ब्लैक बॉल डिवाइडेड बाई 7C2। एंड केस 3 बताओ क्या होगा, चलो केस 3 बताओ। 1 वाइट + 1 ब्लैक, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4C। देखो वाइट 4 है ना यहाँ पर एंड ब्लैक हमारी 3 है, तो 4C1 एंड 3C1 डिवाइडेड बाय 7C2। 4C1 मल्टीप्लाई 3C1 डिवाइडेड बाय 7 बॉल्स एंड 2 हमने चूज़ करी है। समझ में आ गया ना कैसे हुआ, क्योंकि हम इसमें जब भी ना, देखो 1 वाइट एंड 1 ब्लैक है, एंड का मतलब ही होता है कि यहाँ पर ना हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड का मीनिंग होता है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई एंड और का मीनिंग होता है प्लस। तो यहाँ मैंने क्योंकि बोला था, देखो यहाँ तो प्लस तो मैंने इसलिए लगा दिया कि वो करने के लिए, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, ये था ना थर्ड केस हमारा, इसलिए यहाँ पर 4C1 मल्टीप्लाई 3C1 आएगा डिवाइडेड बाय 7C2। मैं अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हम वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें फ्रॉम B। अब हमारा ध्यान सिर्फ B में रहेगा, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट केस में मैंने बोला था कि फर्स्ट केस में क्या था, दोनों वाइट है ना, बोथ वाइट,
जब दोनों वाइट आएंगे इसका मीनिंग ये हुआ ना, अब हमारे पास बी में कितने हैं, 5 वाइट एंड 5 ब्लैक, क्योंकि दोनों वाइट बॉल्स यहाँ ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो 3 + 2 5 हो जाएगा। इतनी हमारे पास बॉल्स है। अब यहाँ से आपको वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको वाइट बॉल की। सिंपल है ना ये, आपको एक टाइम में एक ही पे फोकस करना है, तभी आपको आएगा ये। सो अब आप निकाल सकते हो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, एक ही वाइट बॉल निकालना है। सो ये हो जाएगा 5C1 डिवाइडेड बाय, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 10 है ना यहाँ पर अभी, 10C1। अब नेक्स्ट केस क्या है हमारा, नेक्स्ट केस है कि दोनों जो है वो ब्लैक बॉल्स है। अब अगर यहाँ दोनों ब्लैक बॉल्स आती, अगर दोनों ब्लैक बॉल्स आती हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 ब्लैक बॉल्स ट्रांसफ़र करी है, तो इसका मीनिंग ये था कि यहाँ 3 वाइट हो जाती एंड 7 ब्लैक हो जाती। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो वाइट की। अभी वाइट की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3C1 डिवाइडेड बाय 10C1। सो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई 3C1 डिवाइडेड बाय 10C1। अब लास्ट केस क्या है हमारा कि हम एक वाइट एंड एक ब्लैक, यानी यहाँ जो 2 बॉल्स ट्रांसफ़र हुई, यहाँ एक वाइट ऐड हो जाएगी और एक ब्लैक। सो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखो, 4 वाइट हो जाएगा अब एंड 6 ब्लैक हो जाएगा। सो अब यहाँ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4C1 डिवाइडेड बाय 10C1। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब मैं इतना लंबा सॉल्व नहीं करूँगी, आप खुद सॉल्व करो यहाँ पर, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। यहाँ आ जाएगा 1/7, 3/70 एंड 16/70। सो लास्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 3 केसेस थे, क्या था यहाँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैक बी। तो या तो केस 1 होगा, या तो केस 2 होगा, या तो केस 3 होगा। मैं या तो कह रही हूँ, है ना, या तो मतलब और। सो सारे केसेस जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। अगर मैं बोलती ये केस एंड ये केस एंड ये केस, तब ये मल्टीप्लाई होता, बट यहाँ मैं बोल रही हूँ या तो ये या तो ये। सो यहाँ प्लस हो जाएंगे सारे केसेस, 1/7 + 3/70 + 16/70। इनको आप प्लस कर देना, ठीक है। एंड आंसर कुछ 29/70 आ रहा है इसका। Now the next question here is 2 horses are considered for a race. The probability of selection of the first horse, जो first horse है उसको मैं PA मान लेती हूँ, is 1/4 and जो second horse है it is P of B equals to 1/3. What is the probability that both of them will be selected, only one of them will be selected and none of them will be selected? ऐसे questions भी आते हैं आपके। So यहाँ देखो हम कैसे करेंगे इसको। पहले तो ना मैं P0 A भी फाइंड आउट कर देती हूँ, इनमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो P0 A क्या होता है, 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4 एंड P0 B ये कितना हो जाएगा, 2/3, यानी नॉट सेलेक्टेड वाली प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब फर्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट वाला है बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। सो ये हो जाएगा PA × PB। सो PA कितना हो गया आपका, ये है 1/4 × 1/3 दैट इज़ 1/12। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब ये है, मान लो A वाला सेलेक्ट हो गया और B वाला नहीं हुआ, या फिर यानी और लगाएंगे हम, ठीक है। और मीन्स प्लस होता है, जो फर्स्ट वाला है वो सेलेक्ट नहीं हुआ एंड दूसरा वाला सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, P of A इज़ 1/4, P of not B A, ये P0 A 3/4 एंड ये हो जाएगा 1/3। दैट मीन्स 2/12 + 3/12 5/12। नाउ नेक्स्ट इज नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, P0 A × P0 B। थर्ड वाला मैं यही बता रही हूँ आपको, ये हो जाएगा 3/4 × 2/3, है ना। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करोगे आप, दोनों ही सिलेक्ट नहीं होगी, 1/2 इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन्स हैज़ टू बी फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। कितने हैं हमारे पास टोटल, 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल। एक गर्ल तो होनी चाहिए, मिनिमम 1 गर्ल होनी चाहिए।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स दैन बॉयज़। तो हम यहाँ केसेस बनाएंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर, क्योंकि हमें 4 लोगों की कमिटी बनानी है, तो कितने केसेस पॉसिबल है। चलो देखते हैं। केस 1, मिनिमम 1 गर्ल होनी चाहिए। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि एक हमारी गर्ल होगी और बाकी फिर हमारे 3 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। देखो 4 की कमिटी बनानी ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। देन सेकंड केस क्या होगा, मैंने मान लिया 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, क्योंकि गर्ल तो होनी चाहिए, एंड बाकी कितने हो गए, बॉयज़। देन 3 गर्ल्स 1 बॉय, 4 गर्ल्स एंड नो बॉय। ऐसा कुछ नहीं लिखा ना कि बॉय होना चाहिए एटलीस्ट 1 या कुछ नहीं लिखा है, कुछ मेंशन नहीं है। सो आई कैन टेक 4 गर्ल्स एंड नो बॉय। तो ये हमारे 4 केसेस हो गए हैं। चलो इन 4 केसेस के हम आंसर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 3 बॉयज़। तो गर्ल्स हमारी टोटल कितनी है, देखो 6 गर्ल्स हैं, 6 में से एक चूज़ करनी है, तो 6C1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं, 8 बॉयज़ थे टोटल, हमें कितने चूज़ करने हैं, 3, तो 8C3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6C2 मल्टीप्लाई 8C2, देन 6C3 मल्टीप्लाई 8C1, एंड यहाँ पर हो जाएगा 6C4। सो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके, सारे केसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। इन सब की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो। देखो आपको इसका फॉर्मूला तो आता होगा ना, NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r। इसको मैं एक बार बता देती हूँ कैसे निकालना है। जैसे मैं 6C4 ले लेती हूँ, ठीक है, सबसे सिंपल वाला, ये हो गया डिवाइडेड बाय 4 एंड 6 माइनस 4 इज़ 2। अब देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय, मैंने इसलिए लिखा है ना यहाँ तक ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए, इंटू 2 इंटू 1, ये तो है ना, आपको पता है ना n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, सो ये आ जाएगा 15, है ना। अच्छा ठीक है, बाकी आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। तो ये टोटल वेज हो जाएंगे आपके 931, ठीक है। अब ये देखो आप ध्यान से, यहाँ बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स दैन बॉयज़। ये इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गर्ल्स ज़्यादा होनी चाहिए बॉयज़ से। सो कौन से केस में है ऐसा, एक तो आपका हो गया ये वाला केस, फिर ये वाला केस हो गया, है ना। इन दोनों केसेस में ही हमारी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा हैं। तो आप ये लिख दोगे, एक तो हो गया 6C4 और दूसरा वाला क्या हो गया 6C3 इंटू 8C1, है ना। तो यहाँ पर या तो ये वाला केस होगा या तो ये वाला होगा, मीन्स यहाँ प्लस आएगा बीच में, से हो जाएगा 15 प्लस 160 175। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 175 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 931। सो ये आपका आंसर आ गया है। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम, ये हर ईयर आता ही है। सो 3 मशीन्स आर गिवन और इसकी प्रोबेबिलिटी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। 25%, 35%, 40% ऑफ द रिस्पेक्टिव आउटपुट्स, ये इतने डिफेक्टिव हैं, तो हम डिफेक्टिव को ना D से डिनोट कर देंगे। A bolt is drawn at random from the total production and it is found to be defective. Find the probability that it was manufactured by machine C. तो पहले P of A निकालेंगे हम, क्या है 25%, P of B is 35%। बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, एंड 40%। सो ये मैं 1/4 लिख सकती हूँ, ये 7/20 एंड 2/5 हाँ। एंड डिफेक्टिव की भी हम निकाल लेते हैं, P of D by A, ये कितना हो जाएगा, 5% दे रखा है, 5/100 दैट इज़ 1/20। P of D by B is equal to 4/100 that is 1/25 and P of D by C is equal to 2/100 is 1/50, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी कि ये मैन्युफैक्चर्ड है बाय मशीन C। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा P of C by D इज़ इक्वल टू
पी ऑफ सी मल्टीप्लाई पी ऑफ डिफेक्टिव, ऐसे करके हम फॉर्मूला डिवाइड बाय टोटल कर देंगे, यानी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ डी बाई ए, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, पी ऑफ बी मल्टीप्लाई पी ऑफ डी बाई बी एंड, और यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी बाई सी। पी ऑफ सी कितना गिवन है 2/5 मल्टीप्लाई पी ऑफ डी बाई सी था 1/50, पी ऑफ ए 1/4 इंटू 1/20 प्लस ये 7/20 इंटू 1/25 प्लस 2/5 इंटू 1/50। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा देखो, अगर ये बोला होता कि आप फाइंड आउट करो कि इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो आप इसको लेते हैं यहाँ पर, है ना, इसकी जगह ये होता पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ डी बाई बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, इसको करके जाना, छोड़ना मत। ये हो जाएगा 1/25, 125 होता है ये, डिवाइडेड बाय 1/80 प्लस 7/500 प्लस 1/125। सो यहाँ पर हमारा एलसीएम हम ले लेंगे 2000। तो ये हो जाएगा 1/125 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 28 प्लस ये कितना होता है 8 तो 1000 होता है, तो 16, 8 2 से 16, हाँ ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2000। सो 1/125 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 13 और 6 59 हो जाएगा यहाँ 125। ये हो जाएगा, देखो ये 2 इंटू 1000 होता है ना, तो ये 8 से कैंसिल, 8 to the 16/69। दिस इज़ योर आंसर। सो आई विल एंड दिस वीडियो हेयर। अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी ले ली है। एंड वहाँ से आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, सारे चैप्टर्स के सेक्शन ए कवर्ड है। एंड अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी। अभी स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से मैं इतनी ही वीडियो रख रही हूँ। ऑल द बेस्ट एंड बाय।